Good morning, dear students. Welcome to PN Amarsi e-learning classes. Chapter number 7, Following the Mahatma, Part 1. Children, we are going to learn from this lesson how we got freedom by following Gandhiji, the person whom we recognize as Bapu, father of the nation, and Mahatma is none other than the greatest human ever, Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi went to South Africa to practice law after acquiring the degree of a barrister. The whites had established their supremacy over the black natives of South Africa. Compared to the whites, the Indians enjoyed very few rights. Gandhiji protested against this insult and injustice. He discovered the path of truth and non-violence to fight against the injustice, which he called the Satyagraha. तो बच्चों, गांधी जी जिसे हम भारत का राष्ट्रपिता भी कहते हैं, एक बार मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका गए बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए। तब वहाँ पर गोरे और कालों का भेदभाव चल रहा था। गोरे लोगों का कहना था कि सारे अधिकार जो है वो सिर्फ उनके हैं और जो काले लोग हैं वहाँ के साउथ अफ्रीका के, उनके पास कोई भी हक नहीं है, बहुत कम हक है। इसलिए गांधी जी ने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी। वो जंग उन्होंने नॉन वायलेंस और ट्रूथ के रास्ते पर लड़ी, जिसका नाम उन्होंने सत्याग्रह रखा। Things to know, Gandhiji went to see the Durban court. The judge ordered him to remove the pagdi turban on head. Gandhiji preferred to leave the court than to remove the turban from his head. That's how he upheld his self-respect. He was appreciated and applauded by the Indians there for this. तो जब गांधी जी डरबन कोर्ट गए थे, वहाँ पे जज को उनकी वो पगड़ी अच्छी नहीं लगी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए उन्होंने पगड़ी नहीं उतारी और वो कोर्ट से निकल गए। इस बात को लेकर गांधी जी के अंदर इतनी ताकत, हिम्मत देखकर लोग, भारतीय लोग जो थे वो बहुत खुश हुए और ब्रिटिश सरकार के सामने लड़ सके, ऐसा कोई ऐसा कोई व्यक्ति वह मिल चुका था। The struggle for freedom initiated in South Africa under the leadership of Gandhiji. Indians suffered a lot during the struggle, but they never responded with violence. At the end, the struggle became successful and popular. तो जो जंग छिड़ी थी साउथ अफ्रीका में आज़ादी के लिए, गांधी जी जिनके अंडर में काफ़ी इंडियंस जो थे जो सफ़र कर रहे थे, उस स्ट्रगल को उन्होंने विथ वायलेंस से नहीं बल्कि नॉन वायलेंस से लड़ी और अंत में उनकी जो लड़ाई थी वो सफल हुई। थिंग्स टू नो, फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी, डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869, मदर पुतलीबाई, वाइफ कस्तूरबा, स्पिरिचुअल मेंटर श्रीमद राजचंद्र, पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले, ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, डेथ 30 जनवरी 1948, समाधि राजघाट दिल्ली। उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की थी। 7.2 Founders of the Natal Indian Congress, Durban, South Africa, 1895. To protest against the racial discrimination. Racial discrimination का मतलब होता है रंग भेद की राजनीति। Gandhiji and other Indians established Natal Indian Congress in 1895. Can you recognize Gandhiji in this picture?
The person standing in the center with the cap is Gandhiji himself. After successful satyagraha in South Africa, Gandhiji returned to India in 1915 at the age of 46. Gandhiji had acquired international fame and respect due to his success in protesting against the racial discrimination in South Africa. He was given a grand welcome at the Apollo Port Wellington Pier of Mumbai. Gopal Krishna Gokhale advised Gandhiji to tour the whole of India in the first year to know the plight of Indians and understand what they needed. After touring, the Gandhiji established Satyagraha Ashram in Kochrab, Ahmedabad, Gujarat on 25th May 1915. After 2 years, he shifted to the Sabarmati Ashram on the banks of the river Sabarmati. तो जब साउथ अफ्रीका में उनका सत्याग्रह में सफलता हुई, तब गांधी जी 1915 में भारत वापस आए। तब उनकी उम्र 46 वर्ष की थी। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी नाम, काफ़ी सम्मान पाया, जो कि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी सत्याग्रह, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद की राजनीति का विरोध उन्होंने जो किया था, उसमें उन्होंने सफलता पाई थी। जब वो भारत लौटे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके मेंटर, उनके गुरु थे, उन्होंने उन्हें भारत का भ्रमण करने के लिए कहा और कहा कि यहाँ के जो भारतीय हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें समझे। और उसके बाद में गांधी जी ने एक सत्याग्रह नाम का आश्रम जो है अहमदाबाद कोचराब में बनाया, और 25 मई 1915 में, और 2 साल बाद वो साबरमती आश्रम साबरमती नदी के पास रहने चले गए। चंपारण सत्याग्रह 1917। Champaran was a place in Bihar near Nepal in the foothills of the Himalaya. It was famous for plantation. The European landlords forced the farmers to produce indigo on 320 portion of their land and sell it at lower rates to them. On the request of Rajkumar Shukla, Gandhiji decided to about the issue. But before the inquiry could start, he was given the order by the magistrate of Champaran to leave the district with immediate effect. Gandhiji ignored this notice. तो बच्चों, चंपारण एक ऐसी जगह जो बिहार में है, एक जगह नेपाल के नज़दीक और हिमालय के नीचे फुटहिल्स ज़मीन पर, यूरोपियंस जो थे वो चाहते थे कि वहाँ के जो लोग हैं, जो किसान हैं, उन पर ज़बरदस्ती की जा रही थी कि वो इंडिगो करके जो किसान खेती होती है वही करे, यहाँ तक कि वह उन्हें ही बेचे इस चीज़ को। तब राजकुमार शुक्ला जो थे, उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि वो इस इशू को सॉल्व करें। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचे और इस मामले को सुलझाना चाहते थे, तो वहाँ के मजिस्ट्रेट ने उन्हें उस चंपारण डिस्ट्रिक्ट से जाने के लिए कहा। लेकिन गांधी जी जो थे, उन्होंने इस नोटिस को इग्नोर कर दिया। Gandhiji prepared a list of problems faced by the farmers and presented it before the British government. Gandhiji stayed in Motihari village of Champaran and protested against the injustice. Ultimately, the Champaran Satyagraha, also known as the Indigo Satyagraha, captured the attention of people all over India. तब गांधी जी ने जो प्रॉब्लम्स फार्मर्स फेस कर रहे थे, इस प्रॉब्लम को उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा। गांधी जी उस समय चंपारण के एक मोतीहारी विलेज में रहे और इसके खिलाफ उन्होंने, अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को भी इंडिगो सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया पूरे भारत देश में। दूसरा सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1917 से लेकर 1918 के बीच में हुआ। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस्ड फेमाइन इन द ईयर 1917। तब सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी, भूखमरी फैल रही थी। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन
was destroyed. Still, the British government, instead of waiving the tax, tried to collect from farmers. तब तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, वो फार्मर्स से टैक्स लगान जो है वो लेना चाहती थी. अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, द फार्मर्स स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. Gandhiji told the farmers that they would not pay the tax until the government accepted their demands. तो गांधी जी के लीडरशिप में फार्मर्स ने सत्याग्रह शुरू किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ. गांधी जी ने किसानों से कहा कि टैक्स हमें नहीं पे करना है, लगान हमें नहीं देना है जब तक कि सरकार हमारी शर्तों को ना मान ले. सरदार वल्लभ भाई पटेल quit his practice as a lawyer as a mark of protest and joined गांधी जी. उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने भी अपनी लॉयर की जॉब छोड़ दी और गांधी जी के साथ लड़ाई में जुड़ गए. गांधी जी wrote a letter to the collector that if the tax of poor farmers was waived, then the richer farmers would pay the regular tax. तब गांधी जी ने कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि आप गरीब किसानों से टैक्स लगान जो है वो लेना बंद कर दे, तभी जो अमीर है किसान वो टैक्स रेगुलर पे करना शुरू कर देंगे. एट द एंड द कलेक्टर पास एन ऑर्डर फॉर द सेम इन 1918 एंड द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल. तब कलेक्टर ने उस ऑर्डर को पास किया 1918 में और ये जो खेड़ा सत्याग्रह था वो भी सफल हुआ. The Kheda Satyagraha did not yield much result, but it became important because of the principles on the basis of which it was fought. The farmers became aware, fearless, and courageous. The most important outcome was that the nation and Gandhiji got a devoted and committed leader like Vallabhbhai Patel. तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो इतना मशहूर तो नहीं हुआ, पर जिस बेस पर यह लड़ा गया था, प्रिंसिपल्स पर, वह बहुत ही किसानों के लिए मदद रूप रहा. फार्मर्स जो थे वो अवेयर हो गए, फियरलेस हो गए, उनमें डर नहीं रहा और हिम्मत आई उनमें. और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, वो भी इस लड़ाई में जुट गए. Thank you, dear students.